Thank you, Dr. Inha. Very good morning to all of you. I am Dr. Neetu Mishra, convener of the national webinar on future practices on health, hygiene, sanitation, and building immunity. Jointly organized by Department of Family and Community Science, that is Home Science, University of Allahabad, and Environment and and Social Welfare Society, Khajuraho, Madhya Pradesh, in association with National Academy of Sciences, India. On behalf of the organizing committee, I heartily welcome our distinguished speakers, guests, delegates, and students to this inaugural session today. I would I would also like to take this opportunity to express my sincere thanks to other seniors and colleagues of our college for joining and gracing this webinar by their presence. This webinar aims at providing key inputs on conditions or practices which are conducive in maintaining good health and preventive diseases. Through cleanliness, that is hygiene and sanitation, which in return boost our immune system. In this context, this webinar will discuss on topics such as health, hygiene and sanitation, role of balanced diet on women's health, boosting immunity is need of the hour, nutritional strategies for stress management, malnutrition in tribal women, and creating opportunities for investment and scaling women's health startups. We have 6 speakers of immense for enhancing our knowledge on these topics. Approximately 200 participants are going to be the part of this webinar. I believe that all participating in the webinar, we will celebrate the exchange of ideas and scaling up good practices. We are pleased to have with us our chief guest, Dr. Kiran Katoch, ex-director, National Jalma Institute of Leprosy and Other Microbacterial Diseases, Indian Council of Medical Research, Agra, Uttar Pradesh. Thank you, ma'am, for joining us. We have among us our guest of honor, Dr. Shivji Malviya, Deputy Secretary, Uttar Pradesh Higher Education Commission, Prayagraj. We welcome you, sir. We also have with us Dr. Ashwini Kumar Dubey, Executive Director, Environment and Social Welfare Society, Khajuraho. Thank you, sir, for joining us. On this very special day, I would like to elaborate the brief history of the department. This department was established in the year 1945, that is the pre-independent India, with a 2-year undergraduate course with the objective to educate women. The name of the department has been changed in the year 2021 to the Department of Family and Community Sciences. Professor Sangeeta Srivastava, the Honorable Vice Chancellor of University of Allahabad, was the former head of this department.
before she joined Professor Rajendra Singh University and then University of Allahabad as Vice Chancellor. She has given her long years of life to this department and served as pillar of strength and catalyst of change for all of us. I express my gratitude to our Vice Chancellor ma'am for her guiding vision, not only for this webinar, but for every step of life. I again extend a very warm welcome to our chief guest of honors, special speakers, and participants who have joined this program from almost all parts of the country. I hope the coming sessions will be sessions, not of lectures, but of dialogues. Once again, I welcome one and all. Thank you so much. Now I hand over the session to Dr. Monisha Singh. Very good morning to all of you. A very good morning to respected Kiran Katoch ma'am, respected Namaskar ma'am, and it is an honor for me to represent on the behalf of department and listening such distinguished speakers. So among us, we have Dr. Kiran Katoch ma'am as chief guest. And I just want to share a short limelight on his life. She has done a lot, and we cannot say that in few words, but I'm trying that I can say it. All of you can get such a small glimpse of her life. She is former director of National Jalma Institute for Leprosy and Other Microbacterial Diseases, ICMR, Tajganj, Agra, and is developer and in charge Model Rural Research Health Unit at Khatampur, Kanpur. She did MBBS in 1974 and MD in General Medicine in year 1979 from SMS Medical College, Jaipur. She has received several research trainings as a talent search scholar of ICMR during 1975 to 78 on clinical hematology, genetics, cell biology, biostatics, immunology, biochemistry, and instrumentation, etc. In her total research experience of more than 37 years, she worked for 34 years on leprosy, about 12 years on tuberculosis and other health problems of rural population. After completion of MD and various research trainings as a talent search fellow of ICMR, she is posted at Central Jalma Institute for Leprosy in 1979 and since then have been working at the institute on various posts, rose from research officer, director, and scientist chief. Dr. Kiran Katoch has developed and implemented several extramural projects on leprosy and TB from WHO, Government of India, CTB, Government of India, CLD, DBT, ICMR, etc. She has published over 160 of publications on leprosy, TB in various reputed journals, out of which 52 as first authors, remaining as co-authors. She has presentation in approximately 100 international and national conferences, workshops, symposia, etc. Her major achievements include she developed and evaluated several important regimes for treatment of leprosy. She contributed toward better understanding of systematic involvement in leprosy by cases. She did evaluation of protective vaccines against leprosy and TB. She played active part in establishment of epidemiological studies on leprosy, tuberculosis at Ghatampur, Kanpur. This program has been expanded and developed into a model rural health research unit, Department of Health Research, DHR, Ministry of Health and Family Welfare. She has been member chairperson of Research Advisory Committee in several states, ICMR, DHR, and the list is so on. She has received various awards and honors of repute like Dr.
C.G.S. Iyer Oration Award of ICMR in year 1989, Dalma Trust Fund Oration Award of ICMR 1994, Vasvik Award 2002 of Vivid Lakshi Audyogik Samshodhan Vikas Kendra, Sher-e-Kashmir Sheikh Mohammad Abdullah Oration Award 2009. She is a Fellow of National Academy of Science and National Academy of Medical Sciences. And the list is so on. अगर मैं बताती जाऊंगी तो पूरा वेबिनार का टाइम भी खत्म हो जाएगा. And the best thing to quote is कि academics और social किस तरीके से मैम ने academy को जो है रूरल लोगों के लिए यूज किया है, मैम उसके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है. And we are all honored that ma'am is here so that our students can get a deep insight कि किस तरीके से केवल रिसर्चेस नहीं करनी है, उनको किस तरीके से अप्लाई करना है अपने सोशल वेलफेयर के. It's a matter of great privilege for me to invite Dr. Kiran Katoch ma'am. So please give her views and give us some insights. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार सब वरिष्ठ गण और बाकी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, सबको बहुत प्यार भरा नमस्कार. और सुबह सुबह हम लोग मिल रहे हैं. मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की आशा को मैं पूरा कर पाऊंगी. मैं अपनी स्लाइड शेयर कर रही हूँ. एक्चुअली इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा गुणगान कर दिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूं और क्या बोलूं, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. पर एनीवे, आई होप आप लोग सब बुरा नहीं मानोगे अगर मुझसे कुछ चूक हो जाए तो. मैं शेयर कर रही हूँ अपनी स्लाइड्स. हाँ, ये आ गया है इस स्क्रीन के ऊपर. तो मेरा जो मेन टॉपिक है मैडम ने ऑलरेडी बता दिया है. फ्यूचर प्रैक्टिसेस ऑन हेल्थ, हाइजीन, सैनिटेशन एंड अल्टीमेटली बिल्डिंग इम्यूनिटी, जिससे हम वी कैन फाइट डिजीजेस. अब इसमें मेन चीज जो ये है कि मैं दोनों इंग्लिश हिंदी दोनों इस्तेमाल करूंगी. मेरी स्लाइड्स जरूर इंग्लिश में है, पर मैं दोनों ही लैंग्वेजेस में इस्तेमाल करूंगी. आशा करती हूँ आप लोग बुरा ना माने, और मेरे वरिष्ठ गण प्लीज मेरे साथ बेयर करें कि मैं कैसे बोलती हूँ. एनीवे, तो मैं आपको पहले शुरुआत ये करती हूँ क्योंकि ज्यादातर मेरे बच्चे हैं और ज्यादातर मेरे भविष्य है. मेरा भविष्य आप सब में सीमित है बच्चों, और आप ही सब इसको आगे लेके जा सकते हो. तो मैं सिर्फ पहले वाली स्लाइड मेरी उससे डील करती है कि हेल्थ होता क्या है. मतलब पहले तो ये माना करते थे कि हेल्थ वो होता है जिसमें डिजीज नहीं हो, जिसमें इलनेस नहीं हो, जिसमें इम्पेयरमेंट नहीं हो. पर ये अब चीज नहीं है. इसी से जो ये है, इट इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, आपका शारीरिक, मेंटल, सोशल भी साथ में इंक्लूडेड है कि हम अपने समाज में रहते हैं. हम अकेले सन्यासी तो नहीं है, तो हमारे समाज में भी हमारा वेलबींग हो एंड नियर, और सिर्फ डिजीज के एब्सेंस ना हो. तो ये आजकल का डेफिनेशन है और यही यूज करते हैं. तो ये मतलब फिजिकल, मेंटल और सोशल सबकी वेलबींग है. ये हमें क्या क्या देता है? ये हमें अलाउ करता है कि हम रोज की डेली डिमांड्स ऑफ लाइफ को बड़ी अच्छी तरह से मीट कर सके. अब लाइफ तो हम सब समझते हैं, उसमें उतार चढ़ाव आता है, नहीं तो लाइफ ही नहीं होगी. अगर एक बार स्टिल हो जाए, वो रोज का उतार चढ़ाव है, और हम उसे एडिक्वेटली डील कर सके. हम एक अपना जीवन ऐसे व्यतीत कर सके कि हम अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी हम किसी काम आ सके. तो दिस इज हर इंसान के लिए हेल्थ ये मीनिंग करता है. और दूसरा जो तीसरा जिस तरह से बोलते हैं, इसमें एक बैलेंस, इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जिससे कि हमारे जो उतार चढ़ाव आते हैं, जो उतार आता है तब भी हम ना भूलें, और जब चढ़ाव आता है तब भी हम अपनी वेलनेस मेंटेन रहें, हम पॉजिटिव थिंक रहें. जरूर हमें नुकसान तो होगा ही कहीं पर हम उसे कैसे उससे ऊपर उठ सकते हैं, यही एक हेल्थ और वेलबींग है. एक हेल्दी पर्सन इसी से सब कोप कर पाता है, और जो डिजीज पर्सन है, जो हेल्दी नहीं है, वो नहीं कर पाता. तो इसमें क्या चीजें हैं? इसकी मेन कई चीजें हैं. एक तो फिजिकल हेल्थ है,
कि फिजिकल कि हमें कोई डिजीज नहीं हो, हमारा कोई अंग खराब नहीं हो, जिसमें बहुत सारे आंख, कान, हाथ, पैर सब कुछ इंक्लूडेड है। तो फिजिकली हम लोग उससे अच्छी तरह से हम अपने आप को मेंटेन करें। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है साइकोलॉजिकल, हमारा मस्तिष्क, हमारा जो जिसमें हमारी सोच की शक्ति है, जो इंसान को बाकी सब मतलब जानवरों से और प्लांट लाइफ से अलग करता है, हम उसको सही सोच दे सके, हम उसको एक्सेप्ट कर सके, फेलियर्स भी और हमारे जो हम अचीव करते हैं उनको भी। तो वो साइकोलॉजिकल, जब हम फेलियर होते हैं तो कई लोग टूट जाते हैं। टूटना नहीं है, हमें फेस करना है, अगला कल आएगा, अगली सुबह आएगी, अगला हम बेटर कर सकेंगे। तो जो ये हमारा मस्तिष्क हमें ये शक्ति देता है, उससे क्या होता है, हमारे बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर भी अभी तो प्रूवन है कि एंडोक्राइन्स लिबरेट होते हैं, ऑक्सीटोसिन लिबरेट होती है और बहुत सारे साइटोकाइन्स लिबरेट होते हैं, जिससे हमारे मन को शक्ति मिलती है। कोई बात नहीं, ये समय भी चला जाएगा और बेटर करें। या फिर जब दूसरे को ऐसी आती है तो हम उसको कैसे हेल्प करें, जैसे हम ओवरकम किए वैसे वो भी ओवरकम कर ले। तो साइकोलॉजिकल हमारे इंसानी देह का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें मैंने नीचे लिखा है स्पिरिचुअल, पर मैं आपको अभी उससे आती हूँ, पर उसके साथ सोशल। सोशल मतलब हम जिस फैमिली में, जिस सोसाइटी में, जिस शहर में, जिस देश में, प्रांत में रहते हैं, वो हमें एक्सेप्ट करे और फिर पूरी सृष्टि हमें एक्सेप्ट करे। वो है सोशल। कि अगर हम लंगड़े हो गए, मान लो मेरा एक पैर टूट गया और मेरे सोशल लाइफ में सबने मुझे धिक्कार दिया और मुझे बाहर कर दिया, मुझे किसी शादी ब्याह पे नहीं बुलाया, मुझे किसी पार्टी पे नहीं बुलाया, या मुझे अपने साथ अपना अंग नहीं माना, तो फिर मैं बहुत कट ऑफ हो जाऊंगी। वो चीज सही नहीं है। तो सोशली हम सबका साथ ही लेकर आगे चल सकते हैं। तो इसलिए सोशल वेलबींग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फिजिकल वेलबींग है। स्पिरिचुअल वाला जो हमारे मानसिक, जो हमारा भारत देश में इतने सदियों से स्पिरिचुअल का वो जो चल रहा है और अभी तक चल रहा है, बहुत सारे हमारे लोग बहुत स्पिरिचुअल हैं। इसका मतलब कि हमारे अंदर से हम अपनी शक्ति, ऊर्जा इकट्ठी करके हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर अ हेल्पिंग। और ये स्पिरिचुअल आजकल WHO भी ऐड कर रही है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल वेलबींग में बहुत बड़ा योगदान देता है, फिजिकल वेलबींग में, सोशल वेलबींग में भी और साइकोलॉजिकल में। स्पिरिचुअल इन तीनों में वेल्ब करता है। सोशली भी हम एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, सोशली भी हमें हो जाते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, ये तो ऊंच नीच चलती रहती है। तो वेलबींग के लिए ये मेन पिलर्स हैं जिससे हमारी वेलबींग और हम हेल्दी रह सके। अब इसकी लिंकेजेस क्या है, मैं थोड़े संक्षिप्त में आपको बता देती हूँ। अब ये मेंटल और फिजिकल मैंने आपको बता दिया कि ये दोनों आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं। कि अगर एक अंग खराब भी हो जाए, या एक आंख खराब हो जाए, या हम कम सुनने लगे, या कोई भी बात होने लगे, फिर हमारा जो मेंटल मेकअप है वो हमें और दृढ़ता देता है। कोई बात नहीं, हम थोड़ा ऊंचा सुन लेंगे, हम दूसरे से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि हमें ऊंचा सुना दे, या एक अंग नहीं काम कर रहा तो दूसरे अंग को इस्तेमाल करके हम अपनी फिजिकल कैपेबिलिटी बढ़ा लें, तो वो वेलबींग है। दैट इज नॉट कि आप अपंग हो गए तो आप नहीं कर सकते, वो वेलबींग है। तो ये मेंटल जो है वो आपके फिजिकल को, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और जो हमारे ज्ञानी और वैसे लोग हैं, वो अगर मेंटली रहते हैं तो वो भगवान का हमेशा शुक्रिया करते हैं कि उनको फिजिकली हेल्दी दिया गया ताकि वो अपना कर्म कर सके। अब ये तो समझ में आ गया कि फिजिकल इल हेल्थ और मेंटल ये आपस में बहुत सारे कोरिलेटेड है। पर एक साधारण मनुष्य, उसको अगर कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो जाती है या उसका कोई चीज हो जाता है, तो नॉर्मली एक क्षण के लिए या आधे क्षण के लिए या कुछ मिनटों के लिए वो एकदम डिप्रेशन या एंजाइटी में चला जाता है कि अब क्या होगा मेरे साथ, मैं तो ये खाना नहीं खा सकूंगा, मेरा हाथ टूट गया, मैं चल नहीं सकूंगा, मेरा पैर टूट गया, या ये। तो ये जो मेंटल जो आपका मेकअप है
जो आपके मीन्स लिबरेट होते हैं आपके बॉडी से, वो आपको तैयार करते हैं, अरे घबराओ नहीं, ये सब हो जाएगा। बॉडी पूरा एक चीज है, एक यूनिट है जो इकट्ठा काम करता है, और कोई अंग उसका काम कर लेगा और आप अपना काम कर पाओगे। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन से हम लोग उभर सकते हैं, और ये हमारे फिजिकल और मेडिकल कंडीशन को भी वो करता है कि आप किस तरह से फाइट कर सके। क्योंकि इस दुनिया में ना तो देवता ना इंसान, ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको दुख नहीं आया। दुख तो आते ही हैं, तो पर हम इनको और इनकी मेडिकल कंडीशंस को कैसे ओवरकम करें, ये स्ट्रेंथ हमारे मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ से मिलती है। अब नॉर्मली जो हम मतलब हमारी स्पीशीज मेमिलियन है, हम लोग हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, वैसे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं, पर मेनली जो पढ़ा गया है, जो इन पे किया गया है कि हमारे पास स्ट्रेस आती है तो हम कैसे फाइट करते हैं, या फियर या फाइट या फ्लाइट या फ्रीज हो जाओ। फ्लाइट या फ्रीज हो जाओ कि आप वहीं खड़े रहो, मूर्ति बन जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो इसमें इसके हिसाब से इसमें जो ये रिस्पॉन्सेस जो होते हैं, दे मे क्रिएट स्ट्रेस, और इस स्ट्रेस से ओवरकम क्या करता है, हमारे साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ हमें ओवरकम करता है, जिससे हम फिजिकली फिट रहें और हम भाग सकें या हम फाइट कर सकें और फियर को ओवरकम करें। तो ये वाले जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं, दे आर नोन एज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, बॉडी के अपनी रिस्पॉन्सेज। अब ये वाले अगर ओवरडू हो जाएं, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहें छोटी सी बात से, तो ये मैंने जो नीचे लिस्ट किए हैं, ये कुछ कंडीशंस है, मेडिकली नोन है, जिसके लिए हमें दवाई और कई चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जिसके एग्जांपल्स हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो दिन में 5-10 बार टॉयलेट को यूज करता है, वो फीकल डिस्चार्ज करता है, वो ज्यादा वो होता है, दैट इज इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, और किसी भी चीज से रिस्पॉन्स नहीं आता। अस्थमा, आप देखोगे कि कई लोगों के अस्थमा ट्रिगर होता है स्ट्रेस से, एंग्शियस से, डिप्रेशन से। इसी तरह माइग्रेन हेडेक्स हैं, जो आधे सिर में दर्द होता है, वो माइग्रेन हेडेक्स है। ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे इस रिस्पॉन्स टू फियर, फाइट, फ्लाइट, एनी ऑफ दीज थिंग्स। डायबिटीज और हाइपरटेंशन और आजकल की जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जिन्हें कहा जाता है, ये भी काफी हद तक हमारे कंटिन्यूअस स्ट्रेस के कारण, ये वाले एंडोक्राइनल सिस्टम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो हमारी इंसुलिन कम हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर कम, वो हाई हो जाता है। वो जरूर कम हो जाता है, पर वो कॉन्स्टेंटली अगर बार बार हो तो भी लीड्स टू दिस लाइफस्टाइल डिजीज। तो ये लिंकेजेस है मेनली आपके फिजिकल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अंदर। अब इसमें क्या है, एक नॉर्मली क्या देखा जाता है कि अब विवेकानंद जी का एग्जाम्पल लीजिए, कितने स्ट्रॉन्ग विल थे, हम लोग सब जानते हैं उन्हें, और वो डायबिटिक थे, उनको बुरा लगता था, उनकी एंजाइटी होती थी, उनका वो गुस्सा आता था उनको अपने मन ही मन कि क्यों समाज ऐसे बिहेव करता है, क्यों ऐसा अन्याय करता है। ही डेवलप्ड डायबिटीज, पर इट डिड नॉट स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ही कंटिन्यूड टू से कि जितने दिन भी जीऊंगा, जो तो भगवान ने किया हुआ है, मैं अपना कार्य जरूर करूंगा। तो जो स्ट्रॉन्ग विल, आप में से कई लोग को नहीं मालूम होगा कि वो डायबिटीज से पीड़ित थे, या वो कभी नहीं उन्होंने बताया है कि मुझे डायबिटीज है, हाय राम मुझे रोज दवाई खानी पड़ती है, या मुझे ये परेशानी होती है, या वो उनके विलनेस से ही ओवरकेम हिज फिजिकल डिजीज एंड लेड अ वेरी वेरी फ्रूटफुल लाइफ। सिर्फ अपने टाइम नहीं, आने वाले समय के लिए भी ही इज अ शाइनिंग एग्जाम्पल। इसके अलावा कुछ जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस जो हमें आ रहा पार्ट होता है, सब कुछ सिर्फ एनवायरनमेंट और अपने शरीर से नहीं होता है। कुछ जेनेटिक्स और जो इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से, अपने डीएनए से, अपने उससे मिलते हैं, वो भी कई बार हमारे हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स होते हैं, बट नॉट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। Environmental influences can alter them, but not completely. But they can alter them ताकि we can face it. So this thing. तो कई डिजीजेस को हम प्रीडिस्पोज होते हैं, जैसे डायबिटीज अगर आज
डिटेक्ट हुई मेरे में, तो मेरे से सबसे पहले डॉक्टर पूछेगा आपके पेरेंट्स में से किसी को डायबिटीज थी, उन्होंने इंसुलिन ले रहे थे, वो क्या कर रहे थे। मतलब ये प्री डिस्पोजिशन हो जाता है, वो हमारे जेनेटिक इन्फ्लुएंस इसलिए कि हम किस तरह से स्ट्रेस को जेनेटिकली हम किस तरह से फेस करते हैं, उसे एंडोक्राइनल और जो म्यूटेशन हो जाते हैं वो किस तरह से हमारे अंदर भी आ गए होंगे वो म्यूटेशन, जिसके कारण हमें अभी डायबिटीज हो, या हमारी इंसुलिन उतनी मात्रा में नहीं बन सकती जितनी हमें जरूरत है। पर ये कोई चीज आपके हैंडीकैप नहीं है, अगर आपके स्ट्रॉन्ग विल है तो आप आगे से चलते। इसलिए मैंने विवेकानंद जी का आपको एग्जाम्पल दिया कि आप देखिए वो क्या है, द शाइनिंग स्पिरिट बिहाइंड एवरीथिंग। और कई लोगों को नहीं मालूम होगा कि वो डायबिटिक थे और इनकी छोटी सी लाइफ इसलिए थी। फिर हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल, हम जैसे सुबह उठते हैं, हमें सिखाया जाता है उठो, सबको प्रणाम करो, सबको भगवान को प्रणाम करो, अपने दांत मांजो, अपने हाथ पैर धो, अपने ये सब करो। ये सब जो हैबिट्स और बिहेवियर्स हमें अपने संस्कार अपने पेरेंट से मिलते हैं, दे आल्सो इन्फ्लुएंस। और दिस आल्सो, हमें सबको प्रणाम करने, झुक के वो करने से हम वी कैन लिबरेट मोस्ट ऑफ अ स्ट्रेस जो वो होता है, वो हमारे अंदर इनबिल्ट है बाय द हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अवर पेरेंट। वो कहते हैं ना, संस्कार हमेशा आपके काम आते हैं। तो जो हमारे पेरेंट्स ने हमें संस्कार दिए वो हमें हेल्दी लिविंग के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। दिस इज जस्ट आई वांटेड टू एक्सप्लेन कि ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और डिजीज विच कॉजेज इल हेल्थ, जो हो गई हमें बीमारी, ठीक है हमें हो गई एक, तो उसका जो बीमारी है ये सिर्फ एक चीज के लिए नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अलोन, पर आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे है, एंड दैट इज व्हाट इज अ हेल्दी इंडिविजुअल। आपका बॉडी का रिस्पॉन्स कैसे है, वो किस तरह से उसे कोप अप करता है। यस, द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म का अपना इफेक्ट होता है, उसकी कोई मानना नहीं है, पर आपका बॉडी का उसका रिस्पॉन्स क्या है विल डिसाइड कि आपका डिजीज का जो वो चल रहा है, जो उसकी प्रक्रिया चल रही है, वो किस तरह तक आपको हार्म करेगी, किस तरह को आप तक डिसेबल करेगी, और किस तरह तक आपको और जोश देगी कि आप और बेहतर काम करें। तो ये इसके बारे में था कि जो वेलनेस है और डिजीज, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मेनी अदर थिंग्स। अब आते हैं साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल में क्या है, ये पॉजिटिव थॉट्स है कि ठीक है बुरे, मतलब भगवान राम ने भी जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था, मनुष्य शरीर धारण किया, तो क्या उन्हें दुख नहीं आए थे? क्या उन्हें 14 साल वनवास नहीं मिलना पड़ा था? तो दुख तो आएंगे, पर आप उसको पॉजिटिव लो ना। अगर इन्हें वनवास नहीं होता तो इतने राक्षस नहीं मरते, अगर इतना वो नहीं होता तो इतने लोगों का भला नहीं होता, राक्षस नहीं मरते तो ज्ञानी मुनि वगैरह सब प्रभावित होते। इसीलिए जो जनरेट अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड पॉजिटिव थॉट्स का यही है, दुखी, इसे दुखी मत हो, और ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ देता है ताकि आप आगे चल। राजकुमार, राजकुमारियां, रानियां पैरों नंगे अगर फॉरेस्ट में जा सकते हैं तो कौन सी बड़ी बात, तो हम कौन सी बड़ी चीज है जो हम ये चीजें हार्डशिप्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल नहीं फेस कर सकते। इसलिए जो ये एग्जाम्पल्स हमारे कल्चर में है, हमारे सभ्यता में है, कि हम पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देते हैं जिससे कि हम अपनी सफरिंग को कम सके। हम फिर तुलना करते हैं, यार मेरे पास तो जूते हैं, मेरे पास तो 2 पाँव हैं, वो तो बेचारा लंगड़ा है फिर भी सब काम करता है। तो ये हमें हेल्प करता है, ये पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हेल्प करते हैं। साथ में हमारी फैमिली, अगर हम पूरा दिन थक के आते हैं और बच्चों के साथ खेल लेते हैं, कर लेते हैं सब, तो हमारा सब थकान दूर हो जाती है। तो फैमिली का उतना ही वो योगदान है, अगर हमसे प्यार करने वालों के बीच में हम थोड़ी देर बैठ लेते हैं। साथ में हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए और हमारे हैबिट्स अच्छे होने चाहिए। हम दूसरे को आदर करेंगे तो दूसरा हमें अपने आप आदर करेंगे। इसलिए ये सब चीजें भी साइकोलॉजिकली ये कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं आपके हेल्थ को, ये सिर्फ थोड़े से एग्जाम्पल थे। सोशल वाली बात हुई, फिर अंडरस्टैंड, इसमें सोशल में मैंने आपको बता दिया सोशल क्या है,
आपकी फैमिली से लेकर आपके नेशन तक, आपके कॉन्टिनेंट्स तक। तो इन लोगों की वेलबींग रहेगी, उनके एटीट्यूड अच्छे रहेंगे तो आपको प्रोत्साहन मिलेगा, आगे चलो आगे चलो। अगर आप सोशली आउटकास्ट हो जाओगे तो आप ना तो कुछ कर सकोगे और साथ में आप इतने दुखी हो जाओगे कि आप हेल्दी और वेलबींग आप में नहीं रहेगा। तो इससे वो सोशल एनवायरनमेंट आप अपना बिल्ड करिए। अच्छा, बाई चांस आपकी फैमिली नहीं समझती या आपकी सोसाइटी नहीं समझती तो उनको एम्पावर करिए और उन्हें मोटिवेट करिए ताकि सोशल आपके साथ चले। विवेकानंद जी का मैं फिर एग्जांपल देती हूँ। वो जैसे पहुंचे थे अपने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर, रिलीजन की कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो अपने नमस्कार कर रहे थे तो सब बोल रहे थे यार तुम्हारा क्या है, तुम तो कैसे मॉन्क हो, तुम तो एक साधु आ गए हो, बाकी सब तो ऐसे करते नहीं है, तुम्हारे भगवान के पीछे तो सिर्फ लड़कियां भागती हैं, ये तुम्हारे कृष्ण भगवान को तुम पूजते हो, उनके पीछे तो लड़कियां भागती हैं। तो उन्होंने कितना अच्छा एग्जाम्पल, उनको एम्पावर किया, उन्हें मोटिवेट किया कि उन्होंने बोला ठीक है साहब आप मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। वो अपना भाषण देते देते धीरे 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 पीछे चलने लगे। तो देखा कुछ समय तक कि पूरी जनता उनके साथ आगे चलने लगी और वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। तब उन्होंने 1 मिनट रोक के बोला कि देखिए आप लोग कितनी दूर आ गए मेरे पीछे पीछे, अगर मेरे एक मनुष्य के कहने से आप इतना कन्विंस हो सकते हो तो आप ये सेक्स का बहाना क्यों ला रहे हो कि लड़कियां चलती थी कृष्ण भगवान के पीछे, वो हमारे भगवान है, वो हमारे वो है। अगर उनके पीछे जनता चल रही है तो आप उसमें सेक्स का मत दीजिए। उनकी वाणी में इतना दम था, उनके उसमें इतना दम था कि सब मोहित होकर उनके पीछे चल देते थे। तो इसको और किसी चीज में मत लीजिए। तो ये सिर्फ आपको इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई कि सोशली आप उन्हें एम्पावर कर सकते हैं, उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं। नहीं तो हमें तो हिंदुस्तान को फकीरों का बोलते थे, सपेरों का राज्य बोलते थे, सब तरह से इस तरह से नाम लेते थे, पर उसके बाद में सब लोग हमें आदर से देखने लगे। तो सोशली अगर आप आउटकास्ट भी हो तो आप उसे डिसहार्टन मत दो, क्योंकि सोशल आपके वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनसे एम्पावर करो, उन्हें मोटिवेट करो कि वो आपको भी एक्सेप्ट करें और आपके नॉर्म्स को भी करें, एंड दे आल्सो रिमेन हेल्दी इंक्लूडिंग यू। अच्छा, ये सब तो हो गया आपके उसके। जो दूसरा स्तंभ था वो था हाइजीन। अब हाइजीन 2 तरह से है, आपकी पर्सनल हाइजीन भी है और आपकी एनवायरमेंटल, जिस जगह पे जिस एनवायरमेंट में आप रहते हो उसकी भी, उस प्रकृति की भी हाइजीन। वो प्रकृति तो हमें जीने का वो देती है। तो पर्सनल तो हम सबको पता है और मैं सिर्फ दोहरा देती हूँ कंप्लीटनेस के लिए। टॉयलेट हाइजीन होती है, हाथ पैर धो, नहाओ रोज, दांत मांजो, नाखून काटो, और ये सब चीजें तो दे आर द पार्ट, और हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। सिर्फ फैमिली में नहीं, स्कूल में भी बोलते हैं तुमने ये किया कि नहीं किया, हाथ धो के खाना खाया कि नहीं, लंच टाइम हो गया तो पहले बच्चों हाथ धो उसके बाद खाना खाओ। मतलब ये सब चीजें तो वो है, ये पर्सनल पार्ट है। पर जो हम भूल रहे हैं, हम इस अपने ही अपने देखने में हम प्रकृति को भूल रहे हैं, हम एनवायरमेंट की, सराउंडिंग्स की हाइजीन को हम भूल रहे हैं। जो मैं चाहती हूँ आप लोग जागरूक हो। हिंदुस्तान एक वैसा देश है जो एनवायरमेंटल, उसके पोल्यूशन और एनवायरमेंटल हाइजीन के लिए पूरे विश्व में काम कर रहा है, और विश्व भी हमें इस बात के लिए मानता है। इसलिए हमारे आसपास कैसा रहो, स्वच्छता अभियान हमारे एनवायरमेंट को बहुत स्वच्छ कर देता है। हम क्या करते हैं, सुबह उठ के झाड़ू लगाती है, माँ भी लगाती है, बहन भी लगाती है, हम खुद भी लगाते हैं, और कोई नौकर चाकर होगा तो वो भी लगाते हैं। किस लिए? कि घर साफ दिखे, यही सब करते हैं। पर कूड़ा कहाँ डालते हैं? बाहर सड़क के। जो ये स्वच्छता अभियान आया उसके बाद हुआ कि कूड़ा इकट्ठा करो, कूड़ा इकट्ठा डालो और इसको एक अच्छी तरह जगह पे डिस्पोज। मैं अभी आऊंगी बहुत डिटेल में इसके बारे में बात करने में, पर यहाँ एनवायरमेंट को भी हमें स्वच्छ करना है। ये नहीं कि अपना झाड़ू लगाया और सड़क पे डाल दिया, उससे हम एनवायरमेंट को दूषित कर रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। पहले हमारे आज से 50 साल पहले जो हमारा मल मूत्र का वेस्ट डिस्पोजल होता था वो इंसान करता था, वो नहीं चाहिए हमारा प्रॉपर वेस्ट। बिकॉज प्रकृति, भगवान, जो भी आप बोलो,
वो नेचर ने इतने सारे वो चीजें बनाई हैं, इतने सारे जीवाणु बनाए हैं कि इस वेस्ट में भी इतने करोड़ों तरह के जीवाणु जीवित रहते हैं और अपना संरक्षण भी करते हैं। हम बोलते हैं यार ये तो मलमूत्र है, इससे क्या है? जी नहीं, इससे कई लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बड़े चीजें इसमें भी जीते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं जो प्रकृति ने उन्हें दिया है। तो ये वेस्ट डिस्पोजल अगर बराबर होगा तो हमारे लिए भी सफाई होगी और उनके लिए भी फायदा होगा। और साथ में जो हमारा जो पानी, हवा, सूर्य, अग्नि, ये जो 5 मेन चीजें हैं वो संरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि इसी से जीवन है। जीवन है तो हेल्थ है, इसीलिए हम उसे ग्राउंड वाटर, जो हमारे सॉइल के नीचे का जो पानी है, उसको हम दूषित नहीं करेंगे और हम उसको पीने के लिए और बाकी सब अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम केमिकल्स क्या करते हैं कि कोई गंदे नाले में बहा दिया या नदी में बहा दिया, नदी चली जाएगी समुद्र में, पर जितने तब तक जाएगी, अग्रीड कि नदी में भी प्रदूषण कम हो जाता है। सूर्य की रोशनी, अल्ट्रावायलेट लाइट, ये जरूर इस प्रदूषण को कम करती है, पर कितने दूर तक? उसके बैंक्स पे तो सब लोग रहते हैं, जीवाणु रहते हैं, जानवर रहते हैं, मछलियां रहती हैं, सब लोग रहती हैं, और सी तक भी ये लोग सब रहते हैं, तो ये सब प्रदूषित हो जाते हैं। तो वो जो केमिकल्स है ऐसे फॉर्म में डिस्पोज ऑफ किए जाएं जिससे कि एनवायरनमेंट को प्रदूषण ना हो। पेस्टिसाइड्स हमने शुरू कर दिए पहले, तो मतलब कि बाकी छोटे जो जीवाणु जो हमारे खाद्यान्न को खराब करते थे, उनको कितनी भी मात्रा डाल दो ताकि वो मर जाए। हम ये नहीं सोचते कि कितनी मात्रा जरूरी है उनके नुकसान के लिए और हमारे जीवन के लिए। हम तो बेशुमार इस्तेमाल करते हैं, अल्टीमेटली वो हमारे बॉडी में जाती है, हमारे ग्रेन्स के थ्रू, हमारे खाद्य पदार्थ के थ्रू। तो वो भी हमें अपना मालूम, आजकल साइंटिफिक डेटा है, हमें पता है कितना चाहिए कितना नहीं, तो उस हिसाब से हम उसका लिमिटेड यूज करें। और जो सबसे ज्यादा अभी हो रहा है पिछले 20-30 साल में कि हमने एक बोतल बिस्लरी की ली, पानी पिया और फेंक दिया, आधा पानी पिया आधा नहीं पिया और फेंक दिया, वो कहाँ जाएगा? वो किधर जाएगा? वो प्लास्टिक तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। पहले कांच की बोतलें थी, तांबे की थी, के बर्तन थे, पीतल के बर्तन थे, सब वो थे, तब तो मान मूंझ के हम रखते थे। कांच के डर लगता था कि हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, इसलिए वो नहीं फेंक सकते थे। प्लास्टिक से तो ना हाथ कटता है ना पैर कटता है, तो हम सब फेंक देते हैं, पर वो प्लास्टिक डिग्रेडेबल नहीं, और डिग्रेडेबल नहीं है तो इन्हीं सब एनवायरनमेंट को प्रदूषित, कहाँ है? टनों टन प्लास्टिक इकट्ठा हो गए, समुद्र जीवी तक परेशान हो गए। तो हमें ऐसे चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए हाइजीनिकली, हमें शुद्ध पानी पीना चाहिए, वो बिल्कुल सही है, पर ऐसे चीजों का इस्तेमाल करें कि जिससे हमारी प्रकृति दूषित ना हो। मैं आगे चलती हूँ, आई एम सॉरी मैं बहुत ज्यादा टाइम ले रही हूँ। इसके अलावा सैनिटेशन और क्लीनलीनेस है, इसका मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको इंडियन वाला सिनेरियो भी बताऊंगी और वर्ल्ड वाला सिनेरियो भी बता रही हूँ। तो ये पहले हिस्टोरिकल, ये वर्ल्ड वाला है, इसके बाद आएगा अपना इंडियन वाला। तो जिसको हम बहुत सभ्य देश मानते हैं, ब्रिटिश हमारे ऊपर राज कर चुके हैं, हम उनको मानते हैं कि ये हमारे राजा थे, इन्होंने हमें सभ्यता सिखाई है, यही माना जाता है, लोग यही मानते हैं, हालांकि ये सच नहीं है, फिर भी ये माना जाता है। तो आप अगर उनके जो उनकी क्वीन विक्टोरिया वाला एरा था, मतलब 1718 वाला, उसमें भी यही बोला था, इन्होंने बोला था कि the most important medical milestone since 1840 was, which resulted in a reduction in morbidity and mortality, was because of fecal-oral infections, and this could be better because of improving the surroundings. तो ये fecal-oral infections कम हो गए उस सभ्य देश में, जो उस समय भी सभ्य था, हम उससे पहले सभ्य थे। तो उससे भी अगर हम अपने सैनिटेशन और एनवायरनमेंट क्लीनिनेस से अगर हम आधी ये बीमारियां ठीक कर सकते हैं, तो ये तो हिस्टोरिकल है विक्टोरियन एरा का। इसी तरह वही उसी जमाने में कॉलरा की एपिडेमिक आई। कॉलरा भी दे कुड कंटेन जस्ट बाय, दे कुड
cut down the transmission of cholera just by improving the sanitation and good hygiene practices. इसी तरह से जो उनका मेन जर्नल है, जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल जो माना जाता है हाई साइटेशन इंडेक्स वाला, जो आप सब बच्चों को पता होगा, उसमें भी यही बोला है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच एवर हैपेंड was of this sanitation and this antibiotics, anesthesia, vaccines important थे, पर sanitation was the most important and this was the best revolution ever in mankind. तो इसलिए ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि सिर्फ हम ही नहीं बोल रहे हैं कि सैनिटेशन और क्लीननेस इंपॉर्टेंट है, सारी दुनिया ये बात बोल रही है और ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आपको इसलिए बताया। अब हम अपने देश की बात करते हैं। इसमें शुरू से, हाँ मैं मानती हूँ स्वच्छता अभियान अभी सबसे ज्यादा पकड़ा है, पर ये नहीं है कि बाकी गवर्नमेंट भी बिल्कुल नहीं सुनती थी। हम भी गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट किससे बनती है? हमसे बनती है। अगर हम ही नहीं सुने उनकी तो कौन सुनाए? तो पहले जो शुरू में ये लॉन्च हुआ ये था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम। ये 1986 में हुआ। ये फेल हुआ क्योंकि हम बाकी समाज को अपने साथ नहीं ले जा सके। इसके बाद 1999 में टोटल सैनिटेशन कैंपेन शुरू हुआ। दिस आल्सो फेल्ड। इसमें भी उतना नहीं हुआ, इसका रिस्पांस उससे बेटर था पहले वाले से, जो रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम था उससे थोड़ा बेटर था, पर यह भी इसलिए फेल हुआ क्योंकि इसमें हम सिटीजन पार्टिसिपेशन नहीं ले पाए, इसकी मॉनिटरिंग और पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं कर पाए। अब 2014 में ये स्वच्छ भारत अभियान आया। दिस इज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ये नहीं, गांधी जी ने भी ये स्टार्ट किया था। अब जब देश आजाद नहीं हुआ था तब भी किया था और देश आजादी के बाद भी बोलते थे स्वच्छता रखो। पर जो मेन अभियान स्टार्ट हुआ वो 2014 से अपने प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के अभियान से ये स्टार्ट हुआ, और जिससे सबसे पहले इन्होंने ओपन डिफिकेशन बंद करवाई 2019 से, ताकि अपना एनवायरनमेंट और अपना ये प्रदूषित। अब 98% ऑफ आवर पॉपुलेशन ओपन डिफिकेशन नहीं करती, वो सब अपने घर में टॉयलेट है। हाँ, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स और कुछ एरियाज हैं जहाँ अभी भी ओरल डिफिकेशन हो रहा है, पर हम आशा करते हैं कि ये कम, और आप लोग सब उसमें योगदान देके ये भी कम करें। अब इसमें क्या है, अब ये जो फाउंडेशन प्रोजेक्ट, अब ये सबसे पिछड़ी जाति वाला मैं इसलिए लाई हूँ, झारखंड को माना जाता है। झारखंड बना बिहार से इसलिए कि बिहार प्रोग्रेस नहीं कर रहा था, वो कम बीमारू स्टेट्स में काउंट होता था, और तब झारखंड को बिहार से अलग किया गया। तो इनके 2 ब्लॉक्स, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है काफी हद तक ट्राइबल पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू बाकी स्टेट्स। तो इसके मैं आपको सिर्फ ये डेटा दे रही हूँ कि अपना इंडिया कहाँ पहुंचा है और कैसे पहुंचा। ये 2 ब्लॉक्स में हुआ, भादरा और लोहारडागा, अगेन वेरी नक्सलाइट एंड ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज। यहाँ सर्वे रिसर्च मेथोडोलॉजी यूज की, बिल्कुल साइंटिफिक, क्वालिटेटिव भी एंड क्वांटिटेटिव भी, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं है, टू सी द इम्पैक्ट कि ये कम्युनिटी के ऊपर ये आरोग्य फाउंडेशन ने ये किया कि स्वच्छता अभियान कहाँ तक पहुंचा। इसमें रैंडम सैंपलिंग की गई, ये नहीं कि सिर्फ मेरे एमएलए के जे या प्रधान का ही विलेज को लिया गया, रैंडम सैंपलिंग की गई। मतलब अक्रॉस द एरिया में कोई भी चले जाइए, राजस्थान में हम बैठे हैं, एटलीस्ट मैं बैठी हूँ, आप लोग जरूर यूपी में बैठे हैं और मध्य प्रदेश में बैठे हैं, पर मैं आपको यही बोलूं कि अपने यहाँ पर 92% लोगों को नहीं मालूम होगा, अभी भी कम लोगों को मालूम होगा कि ये प्रोग्राम चल रहा है और हमें इसमें इस तरह से योगदान। और वहां पर जो सो कॉल्ड पिछड़ी जाति या नक्सलाइट इन्फेक्टेड एरिया में 60% हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्टिविटीज। अपने गिरेबान में झांक देखिए, हम क्या 60% पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो आज से बहुत आगे होता हमारा ये अभी। डायरियल डिजीजेस वहां पर was reduced by 23%. डायरियल डिजीजेस मतलब दस्त लगने या डायरिया होना या उल्टी वगैरह होना, 23% रिडक्शन हो गया। कोई एंटीबायोटिक नहीं दी, कुछ नहीं दी।
और this was more than 10% in 1 year itself. This period was improving. इसने क्या किया? इसने social harmony को भी better किया. हमने बताया कि health also has a social component. Social harmony को भी better किया, जिससे कि हमारे तरफ से garbage dumping और water accumulation कम हुई, क्योंकि उनको स्वच्छता के बारे में पता चला. 92% people knew about it और 60% participated in it. तो देख लो आपका स्वच्छता अभियान ने कितना कम किया. नेक्स्ट स्लाइड भी इसी के बारे में है. ये एनालिसिस है, ये WHO के एनालिसिस है, ये हमारी नहीं इंटरनेशनल एजेंसी की है, जो एक्सपर्ट सब कंट्री से बुलाते हैं. इसमें सिर्फ इंडियन एक्सपर्ट्स नहीं होते. मैं आऊंगी अभी इंडियन वाले पे भी. पर इन्होंने भी क्या बताया, उसने जो हाईलाइट किया, उसने बोला कि वी हैव सेव्ड 14 मिलियन, मतलब डैलीज का मतलब है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. मतलब एक इंसान में अगर डिसेबिलिटी हो जाती है तो कितना लॉस होता है उसको बिकॉज ऑफ द डिसेबिलिटी. उसी को किया. तो हमने 14 मिलियन डैलीज को बचाया जस्ट बाय ब्रिंगिंग इन दिस स्वच्छता अभियान, जस्ट बाय दिस क्लीनलीनेस, जस्ट बाय दिस सैनिटेशन. आगे बढ़ते हैं. अब ये करते हैं हमारे इसरो ने जो स्टडीज की उसके ऊपर. उन्होंने डेटा पब्लिश, उन्होंने सब देखा. IDSP इंडियन प्रोग्राम डेटा, ये जो प्रोग्राम में चलते हैं, हम कहते हैं ना कि भारतीय प्रोग्राम नहीं करते काम, करते हैं. अगर आप देखो तो ये सिर्फ प्रोग्राम डेटा है, ये किसी स्पेशल वाला डेटा नहीं, डेटा प्रोग्राम का है. उन्होंने कहा अकाउंटिंग फॉर, इसमें अक्यूट डायरियल डिजीज का आउटब्रेक्स कम हो गए और इतने सारे लोग बिकेम ओपन डिफिकेशन फ्री, ODF फ्री हो गए. तो उन्होंने बताया कि जो ये जितने ब्रेक ये हुआ आउटब्रेक्स, ये कितना कम, अबाउट 20% कम हुआ. एंड जो 2018 में जो इनका लास्ट ईयर था, उन्होंने बोला ये जो डायरियल वाले रेट्स थे, दे शोड अ प्रोफाउंड डिक्रीज. एंड दिस वाज प्रोग्राम बेस्ड. प्रोग्राम बेस्ड मतलब कि हमारे यहाँ हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट, प्रोग्राम इज अ सेंट्रली ड्रिवन सब्जेक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंटर मिलके करते हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट्स अपने भी प्रोग्राम चलाते हैं और कई बार उस प्रोग्राम में थोड़े ऑल्टरेशन भी करते हैं. तो अक्रॉस ऑल स्टेट्स हमने कितना किया, दिस इज व्हाट द इसरो स्टडी शोड. और इससे सिर्फ यही नहीं हुआ, हमारी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी आई और इन्हीं के कारण हमारी GDP स्ट्रेंथन, ग्रोथ डिसेबिलिटी इंडेक्स ये भी बेटर हो. तो ये सिर्फ ये बताते हैं कि क्लीनलीनेस से हमारे कितने फर्क हुए, सैनिटेशन वगैरह क्लीनलीनेस से कितना फर्क. अब दूसरी जो मेन चीज है, दवाइयाँ, वैक्सीन्स, ये सब हमारे हेल्थ को बेटर करती है, हमारे डिजीज को बेटर करती है. हमें डिजीज नहीं होने देती वैक्सीन्स, और इंटरवेंशन से हमारे डिजीज को बेटर करते हैं ताकि वी हैव अ फीलिंग ऑफ वेलबींग और हम अपना परफॉर्मेंस कर सकें. तो इसमें इसके बारे में भी जो ये आए हैं जितने भी कि ये सब बोलते, वैक्सीन्स और इंटरवेंशन इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, cost effectiveness of the cholera vaccine in a stable refugee population endemic or maximum was contributed by the sanitation, by proper sanitation rather than by vaccine or by antibiotics. cholera के लिए वैक्सीन भी है, cholera के लिए interventions भी है, फिर भी sanitation was the best. Although ये कोई नहीं मना करता कि वैक्सीन और एंटीबायोटिक नहीं लो, आप लो, पूरा हाइड्रेशन लो, एंटीबायोटिक भी लो, आप कॉलरा ठीक हो जाओगे. नहीं तो कॉलरा में हजारों लोग, करोड़ों लोग मर जाते. वैक्सीन भी यस, इफ यू आर गोइंग टू एन एंडेमिक कंट्री, आप लगवा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्लड्स आ गए, कुछ आ गए, इंटरवेंशन की जरूरत है कि जल्दी से ये हो जाए, इट इज रिक्वायर्ड, बट सैनिटेशन इज स्टिल द बेस्ट वैक्सीन. अब ऑल दीज थिंग्स, हाइजीन हो गया, सैनिटेशन हो गया, वेलबींग हो गया, ये सब क्या करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते. अब क्योंकि आप लोग ज्यादातर बच्चे हो तो मैं सिर्फ आप लोगों के ये टर्मिनोलॉजी आती होगी जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है.
कई लोग इसे नहीं समझते, पर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा आपको बताना चाहती हूँ। आपको और डिटेल चाहिए तो मैं आई एम रेडी टू शेयर विद यू। पर जो इम्यूनिटी हमारे बॉडी में, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता है, उसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ये दो तरह की है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारे अंदर होती है, हम जैसे ही पैदा होते हैं हमें थोड़ी क्षमता होती है कि हम डिजीज से कैसे लड़ सकते हैं। अडेप्टिव इम्यूनिटी है जो हम अक्वायर करते हैं एनवायरमेंट से, बाकी लोगों से और अपने एक्सपोजर से। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल तो ये है जो हमें सब देता है, हमारे जीवाणु जो हमारे चारों तरफ हैं सब खराब नहीं है, ये भी दे हमारे लिए एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का तरीका है। एक तो माँ से आता है जो मैटरनल इम्यूनिटी, और एक्टिव है जो इन्फेक्शन से आते हैं, जो जिससे हमें सिम्टम्स हो या ना हो। सिम्टम्स होते हैं तो डिजीज हो जाती है, सिम्टम्स नहीं होते तो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होके हमारी इम्यूनिटी बन जाती है, हमें प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। दूसरी तरह की अडेप्टिव इम्यूनिटी है आर्टिफिशियल, जिसके अंदर जो मेन चीज है वो है वैक्सीन। वैक्सीन, कई वैक्सीन अवेलेबल है। पोलियो है, पोलियो इज द बेस्ट एग्जाम्पल। स्मॉल पॉक्स सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था। स्मॉल पॉक्स से कितनी डिसेबिलिटीज होती थी, कितने लोगों की जान जाती थी, कितने लोगों को होता था, एंड द वर्ल्ड कुड गेट ओवर थ्रू ऑफ स्मॉल पॉक्स यूजिंग दिस वैक्सीन। तो सिर्फ एक तरीका नहीं है, सब तरीके का इकट्ठा इस्तेमाल करने से ही है। तो दूसरा बहुत पॉजिटिव एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन, जो जरूर एक बार नहीं हमें बार बार देनी पड़ती है ताकि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, हम भूल नहीं जाए, हमारे जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको भूल नहीं जाए और इम्यूनिटी हमारी बरकरार रखे, ताकि अगर पोलियो इन्फेक्शन आया बाय वाटर और बाय फूड तो वो हो जाए। दूसरी है पैसिव इम्यूनिटी। आजकल कोविड का जमाना है, सब लोग पूछ रहे हैं, हाँ बोलते हैं एंटीबॉडीज, प्लाज्मा ले लो, एंटीबॉडीज ले लो कोविड इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स का, उसको लगा दो, आर्टिफिशियली दे दो तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। सो दिस इज मोटे तौर पे मैं ये इम्यूनिटी बताना चाह रही थी। वैक्सीन के बाद क्या होता है, नॉर्मली इन्फेक्शन हो या वैक्सीन हो तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और अगर हम रिपीट वैक्सीन लगाएं तो बूस्टर देना पड़े तो हमारी इम्यूनिटी जो कम हो रही होती है वो फिर से बढ़ जाती है। ये सिर्फ ग्राफ इसलिए है, और बच्चों आपको और कुछ चाहिए तो आई एम रेडी टू शेयर विद यू। अब बिफोर आई एंड आई वांट टू टेल यू द लेसन्स फ्रॉम स्वच्छ भारत मिशन एंड स्वच्छ भारत अभियान। इसके अंदर से ये प्रोग्राम चला, इसमें वन ऑफ द इट इज अनडाउटली द मेजर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारी इस गवर्नमेंट ने दिया। इसके अंदर में इट इज, और सिर्फ यही नहीं था, महात्मा गांधी जी भी, द फादर ऑफ आवर नेशन, ऑल्सो स्पोक वाइडली अबाउट दिस, हमेशा बोलते थे। तो हम जो आज फॉलो कर रहे हैं वो हमारे फादर ऑफ बापूजी ने भी, जो हमारे प्यारे बापूजी ने भी बोला, उसी को कर रहे हैं। और ये देखिए इसने क्या किया, इसके इसी स्वच्छता अभियान में मैंने आपको गिना दिए कितने सारे हमने चीजें अचीव की। इसी स्वच्छता अभियान में अब हम आगे चल रहे हैं, और ज्यादा क्या करना चाहिए, वी शुड हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ज्यादातर डिजीजेस इज बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, या ग्राउंड वाटर हमारा कंटामिनेट हो जाए, हम वो पानी पीते हैं, स्वच्छ पानी नहीं पीते, इसलिए होता है बाय प्रोविजन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। द सेकेंड थिंग इज लिमिटिंग एनवायरमेंट कंटेमिनेशन। आप सुने होंगे कि हमारे ज्यादातर जिले जो हैं वो फ्लोराइड अफेक्टेड है, कोई माइल्ड, कोई मॉडरेट, कोई हेवीली फ्लोराइड। इससे भी हमारा डिजीज प्रोग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और डिजीज भी हो जाता है। अगर हम ये एनवायरमेंट कंटेमिनेशन कम कर दें तो हमारे डिजीज नहीं हो, और या हमें फाइट करने की जो क्षमता हमारे बॉडी में है दैट इज बेटर देन। दूसरा है डिक्रीजिंग मेजर, और दूसरा चंक है डिक्रीजिंग मैलनरिशमेंट। हमारे यहाँ पर जो मेन हेल्थ की मेन प्रॉब्लम है वो वाटर बोल दिया, दूसरा है मैलनरिशमेंट। जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारा समाज है वो काफी हद तक मोर देन 50% आर मैलनरिश्ड, क्योंकि हम सही खाना नहीं खाते, सही तरीके से नहीं खाते, सही हाइजीनिक खाना नहीं खाते।
So by decreasing malnourishment, we can increase our immunity and go forward in attaining better health. This स्वच्छता अभियान ये सेफ वाटर देगा, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फॉर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, उस वैक्सीन से प्रोटेक्शन हो जाएगा, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, सेफ स्वेज डिस्पोजेबल, ताकि हमारा ग्राउंड वाटर अफेक्ट नहीं है, हमारे केमिकल से नहीं अफेक्ट हो, पेस्टिसाइड से नहीं अफेक्ट हो, सिंगल यूज प्लास्टिक्स को फेंकने से नहीं अफेक्ट हो, एंड सेफ वेस्ट डिस्पोजल आल्सो ऑफ एग्रीकल्चर एंड हाउस होल्ड कलेक्टेड वेस्ट। आजकल जो अभियान में चल रहा है वो लोग जरूर कलेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है प्रोग्राम, हम सबका पार्टिसिपेशन है, ये सैनिटरी वर्कर्स आके करते हैं, पर क्या उसका सही डिस्पोजल हो रहा है, क्या उनको भी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं? तो वो व्हाट वी रिक्वायर इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस, कि हमें उसको करने के लिए we need, and these are the vehicles of change for healthy living. तो वो तो हो गया अभियान का। दूसरा, जो हम लोग 8 घंटे वर्क प्लेसेस में रहते हैं, वहां भी हमें क्लीन एयर चाहिए। एनवायरमेंट में का आप लोग सब पढ़ते होंगे, पोल्यूशन बढ़िया, ये हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड कंटेंट हो गया, कार्बन कंटेंट ज्यादा हो गया। इट इज नॉट ओनली इन दी जहां हम बाहर घूमते हैं, it is also at our workplaces, at our hospitals, also at religious places जहाँ crowd से इकट्ठे होते हैं, जहाँ आरती और इन सब के पूजे के वो धुआं से भी वो ग्रसित हो जाते हैं। पब्लिक गैदरिंग्स जहाँ बहुत सारे लोग एक छोटे से एरिया में एकत्रित होते हैं, और उसके लिए हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग एंड हाइजीन बहुत जरूरी चाहिए। हमें इनके लिए स्ट्रिक्ट SOPs चाहिए, और साथ में जो हमारे सैनिटरी वर्कर्स हैं, जिसको हम तुच्छ भावना से ज्यादातर लोग देखते हैं, सब तो नहीं, कुछ लोग देखते हैं, उनके लिए SOPs चाहिए कि तुम कचरा उठाते हो ऐसे करो, ऐसे सेग्रीगेट करो, ऐसे फेंको, ऐसे करो, और तुम ये प्रोटेक्टिव हैट वो यूज करो, प्रोटेक्टेड वेयर यूज करो, ताकि तुम नहीं हो ग्रसित हो। क्योंकि जो स्टडीज हुई हैं वो देखा गया डायरिया इन सैनिटरी वर्कर्स की फैमिली में ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जनरल पॉपुलेशन। वो आते हैं, अपना हाथ पैर नहीं धोया, काम करके आए, बहुत थके हुए हैं, पसीने से लथपथ हैं, उन्होंने उसी से ही खा लिया। या उनके फैमिली ने भी देखा कि यार हमारे बापू तो करते नहीं है, हमारी माँ तो करती नहीं, हम भी ऐसे ही खा लेते। तो उनके अंदर जो ये डिजीजेस हैं, वाटर बॉर्न डिजीजेस और पुअर हाइजीन कंडीशन के कारण डिजीज आर मच मोर, तो उनके लिए SOPs चाहिए। जब वो अपने घर जाएं, एक जगह होनी चाहिए जहां वो नहा धो के साबुन से हो के फिर अपने घर जाएं और खाए पिए और आराम से, तो वो SOPs चाहिए, उनके भी अपने राइट्स हैं। तो ये मैं सब आप लोगों से वो कर रही हूँ कि हम यहाँ तक तो आगे भी चलें, इन सैनिटरी वर्कर्स का भी ध्यान रखें। नाउ अ फ्यू माइलस्टोन्स आर स्टिल टू बी अचीव्ड, और इसका कैसे होगा? इट इज बाय पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी, और उस सोसाइटी में आप लोग सबसे हमारे होनहार भविष्य। इसलिए अभी बैठना मत, we have miles to go before we rest. And before I end, I will just say well-being is only one thing. It is, ये सब आपस में interchanged हैं। Well-being, hygiene, sanitation, immunity, all contribute to well-being, and this is what is important. और यही इस topic का था। I hope I have tried to do justice to this. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े आराम से मेरी बात सुनी आप लोगों ने, एंड थैंक यू वेरी मच। पर बढ़ते रहो, चलते रहो, सोचते रहो, और ये हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी, पूर्व प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा था कि साथ में चलते रहो, काम करते रहो, डिलीजेंस से आगे बढ़ते रहो, वी विल रीच आवर प्रोजेक्ट, और हम सोशली अवेयर हो इन सब बात के। थैंक यू।